Now let us see another layer which is the data link layer. Data link layer is basically the layer जो कि physical layer के बाद पहली ऐसी layer है जो actual में bits के साथ interact करती है transmission medium के बाद. Okay, so data link layer जब हमने पढ़ा था what we have read कि ये header के साथ साथ एक extra trailer भी add करती है in the data, right? ठीक है, so this is the only layer which adds the header as well as the trailer. Okay, so what it will do, the data link layer's main responsibility is it is responsible for hop to hop delivery. That is, इसकी responsibility क्या होगी कि एक हॉप एक मशीन से लेके दूसरे हॉप तक आपको डेटा डिलीवर करना है. अब वो दूसरा हॉप आपका डेस्टिनेशन भी हो सकता है, आपका दूसरा हॉप कोई राउटर भी हो सकता है, कोई भी एक चीज हॉप हो सकती है, बट एक हॉप टू हॉप डिलीवरी में जो रिस्पॉन्सिबल है वो डेटा लिंक लेयर. तो अगर एक हॉप से लेके सपोजिटली दिस इज माय network with A is the starting node, we have two routers in between R1 and R2, and then finally B is the destination. ठीक है, they all are connected. So the responsibility of data link layer of A is to make the data correctly be available between A and R1. Now in router, what is the responsibility of router data link layer at router? That it will make R1 and R2 hop to reach the data safely between R1 and R2. Similarly, R2's data link layer responsibility is to make safe transmission between R2 and B. Okay, so hop to hop delivery की responsibility होती है हमारी data link layer की. Okay, and it adds header and trailer both. And once the data is received at the receiver side, this header is also removed and the trailer is removed, and this data is passed to the upper layer, which is the network layer. Now let's see each characteristics of data link layer. The first one is the framing. Framing को समझने के लिए let's understand a bigger picture. We have 7 layers, right? Application layer, presentation layer, session layer, then transport layer, network layer, data link layer, and physical layer. Okay, now these two are upper layers जिसमें आपका मैसेज है वो जैसा का जैसा है वैसे ही ट्रैवल करता है with some add-ons. Okay, these layers are called as user friendly layers. Okay, user friendly layers. These layers are called medium friendly or the hardware friendly or the machine friendly layers. Okay, machine friendly layers. Now what is the responsibility of this transport layer? This is called hard because it makes the connection between the upper layers and the lower layers. Okay, so first thing this transport layer does is it breaks the message into the small chunks which are called as fragments. So ट्रांसपोर्ट लेयर पे कोई भी मैसेज जो है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है. सो वी हैव अ बिग मैसेज, इट विल बी नाउ ब्रोकन इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट्स F1, FR1, FR2 and so on. Okay, at network link layer these fragments travel and this network layer will break this fragment into packets. तो नेटवर्क लेयर पे कुछ भी चीज ट्रैवल करेगी हम क्या बोलेंगे, वो है क्या है, पैकेट है. Then at data link layer these packets are further broken into frames. Okay, अभी कैसे और क्या प्रोसेस होते हैं we will see in the further videos when we see each layer's responsibility. ठीक है, and then finally these frames are traveled in the form of zeros and ones via the physical layer. तो एक कंप्लीट मैसेज जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर ब्रेक करते हैं इनटू फ्रेगमेंट्स. नेटवर्क लेयर पे उन ब्रोकन फ्रेगमेंट्स को फर्दर ब्रेक करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. पैकेट्स आर फर्दर ब्रोकन इनटू फ्रेम्स और फिर वो जीरोस एंड वन के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं. सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा लिंक लेयर? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग. दैट इज जो नेटवर्क लेयर से आपके पास स्ट्रीम ऑफ बिट्स है जो कि क्या होंगे, पैकेट्स, उनको किस में ब्रेक करना, फ्रेम्स में. देन सेकंड वन इज द फिजिकल एड्रेसिंग. फिजिकल एड्रेसिंग इज आल्सो नोन एज मैक एड्रेस. ठीक है, मैक एड्रेसिंग. व्हाट इज द मैक एड्रेस? जो भी आपके मशीन का या नोड का एड्रेस या हॉप का एड्रेस होगा उसको हम मैक एड्रेस कहते हैं, जो एक यूनिक एड्रेस आपकी मशीन को असाइन किया जाता है. ओके, so it adds a header to the frame to define the sender and the receiver. कौन सेंडर है कौन रिसीवर है, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर कौन होंगे, नेक्स्ट हॉप्स.
Okay, and if a frame is for a different network, then the addressing of the connecting device is used. Why? Because जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपका एक पूरा एंटायर नेटवर्क है, ठीक है, तो जो भी कनेक्टिंग डिवाइस होगी या तो ये डेस्टिनेशन हो सकता था या फिर कोई भी कनेक्टिंग डिवाइस, एनी राउटर और एनी स्विच, these everything, it will be responsible of the data link layer to assign it the frame to the next hop via physical addressing. The third one is the flow control. Flow control का मतलब क्या है कि जो हम लोग ने पढ़ा था डेटा रेट को डेटा लिंक लेयर भी कंट्रोल करती है कि आपका डेटा बहुत देर तक बहुत फास्ट ट्रैवल ना कर जाए और जो रिसीवर की स्पीड है उसको वो मैच कर सके, ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल की कुछ प्रोटोकॉल्स है, वी विल सी इन द डेटा लिंक लेयर वीडियोस। देन एरर कंट्रोल का मतलब क्या है? इट डिटेक्ट्स एंड रीट्रांसमिट द डैमेज और द लॉस्ट फ्रेम्स। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हम हर एक चीज को क्या बोल रहे हैं? फ्रेम्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी डैमेज या लॉस्ट फ्रेम होते हैं उसको रीट्रांसमिट करने का काम किसका है? डेटा लिंक लेयर का, ताकि एरर कंट्रोल हो सके, ठीक है। और अगर कोई डुप्लीकेट फ्रेम आ भी गया है तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? हमने देखा था ना, डेटा लिंक लेयर एक एक्स्ट्रा ट्रेलर ऐड करती है। दिस इज द ओनली लेयर विच एड्स द ट्रेलर, ठीक है। वो ट्रेलर आपके डुप्लीकेट फ्रेम्स को डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है, एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ट्रेलर। नाउ द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है? डिवाइसेस जो है वो आपके मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रही है, राइट, ठीक है। अब मीडियम में बहुत सारी डिवाइसेस है, वो एक साथ डेटा भेज सकती है। अगर सबने एक साथ भेज दिए तो कोलिजन होगा। कोलिजन का मतलब क्या? सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर एक सिग्नल दूसरे के साथ मिक्स हो गया तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं सुनाई देगी, राइट, ठीक है। जैसे हम लोग कभी किसी से फोन पे कॉल करते हैं तो आपका सिग्नल जो है वो अगर मिक्स हो जाते हैं तो हमें एक ब्लरी सी नॉइज आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप कभी एफएम भी सुनते हैं, ठीक है, एफएम में अगर आप 93.5 लगा रहे हैं और 93.4 लगा रहे हैं तो इस पे तो आपको सही आवाज सुनाई देगी, बट इसके अंदर आपको मिक्स वॉइसेस सुनाई देंगी। यू कैन ट्राई दैट। इसका मतलब क्या है कि इस वाली लेयर ऑल्दो इट इज नॉट असाइन टू रेड एफएम, पर इस पे कोई और डेटा ट्रांसफर कर रहा है और रेड एफएम भी अगर ट्रांसफर कर दे तो आपका सिग्नल जो है वो मिक्स मैच हो जाएगा, राइट। सो इट डिटरमाइंस हु विल एक्सेस द चैनल at a time, ठीक है, and it is being controlled by the data link layer when multiple devices are connected। तो अगर बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ है तो चैनल का एक्सेस किसको मिलेगा, ये डिसीजन आपका डेटा लिंक लेयर लेती है। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा लिंक लेयर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेटवर्क लेयर।